गुड इवनिंग एवरीवन। और आपको टॉपिक तो सबको आज का पता ही है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे अपन टॉक कर रहे हैं। उसके लिए अपने साथ अमन श्रेष्ठा भी आए हैं, जो अपने यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक्स बैच के 2020 के पास आउट हैं, एंड करेंटली ही इज परस्यूइंग इज एमएस एट सीएसई डिपार्टमेंट आईआईटी दिल्ली। एंड उन्होंने अपने थर्ड ईयर एंड के समर में इंटर्न एनवीडिया में करी थी। तो ये टेक्निकल बैकग्राउंड बता रहे हैं ताकि थोड़ा सा आप फेमिलियर हो जाएं कि हाँ, किन के थ्रू आपको ये सब नॉलेज मिल रही है। तो और बाकी जो भी डिटेल्स हैं वो तो भैया ने प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंट करेंगे। भैया स्टार्ट कर सकते हैं। Hello everyone. So first of all, I would like to thank the team Udyam and particularly Mohit Ritvik for organizing this Think Talk. So अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि माइक्स म्यूट रखना बीच में एंड देयर विल बी क्वेश्चंस इन बिटवीन, सो देन जो मोहित माइक्स अनम्यूट अलाउ कर देना एंड देन सो दैट लोग आंसर दे पाए, ठीक है? ओके, सो अच्छा, सो मोस्टली आई अज्यूम कि मोस्टली लोग फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर से हैं, तो ठीक है। So let me start from with the presentation directly. So the topic is demystifying computer architecture. So what the basic aim of the presentation is to cover four main things. कि एक तो कि what exactly is computer architecture. Second one is start climbing the mountain, which means कि how do you approach this subject? How do you study this subject as a beginner? Third is after you study all this, after you gain this knowledge, how does it benefit you in your placements? जो companies, कौन सी companies आती हैं in IIT BHU specifically for placements, and what are the companies which which are there, and what are the companies which employ people good in computer architecture in other colleges, people outside India, and so on. And then the fourth one is we will talk about professors who are working in this field, other people who are excelling in this field, and that will be like give you a guidance in which direction you can take your career path into if you pursue computer architecture. Okay, so uh, just 1 second. Yes, so the okay, I will just start with this. Okay, so what is computer architecture? So basically, in one line, if you say, like, if from a very high level viewpoint, like if you are flying in a plane and you look down on and you see computer architecture, what will you see? So this is what you will see. It is a study of computer processors and computer systems. So what does that mean? Okay, so processor is the computer chip, which can be the Intel chip in your laptop, Qualcomm chip in your mobile phone, or the NVIDIA GPU, which you have in the supercomputer in our college campus. Okay, which we have not been able to visit, unfortunately, even for me. And after that, but what is system? Like the second term is computer systems. So basically, if you have a chip alone, that is not very helpful. Like I give you an Intel chip, it's cool, it's very good, it is a like it's a state of the art engineering marvel, but what do you do with it? How do you run programs on it? How do you make use of it? So that is called designing a system. So a system is something which has a processor, it has its own memory, it has an operating system, and it runs software on top of it. Software is very familiar to, I think, familiar to all of you. So that is the program which you write, the code which you write in C, C++, that is software. But to run that code, many things are required in the background. So that comprises the system. Okay. And IO ports, that is also a part of the system. Okay. Now, uh,
Like phone, if you consider, I have added pictures of 5 systems on in the slide. First one, if you see, it's a mobile phone. So a phone has very strict energy and power constraints. Like you are running on a battery, so you need to save energy and then run applications. Okay, but and nowadays phones even have a GPU in them. So all of these multiple components in the phone, making them work properly so as to optimize the best performance out of it. That is uh, what is what I mean when I say I am working on it is a study of computer systems. How do I extract the maximum performance out of a phone which has multiple components? How do these components interact with each other? Okay. So now I have a question from all of you. So Mohit, please unmute them and allow them to answer the question. Okay, so the question is कि एक मोबाइल फोन है और एक लैपटॉप है. So computer company designs a mobile phone. It designs a chip. It designs GPU. It designs the whole system for a mobile phone. Can it use the same system to design a laptop? If what do you think? What's your opinion? Like, can that be done? Will that be feasible, or what? How does it actually work? Yeah, please. Anybody can answer, and please unmute yourselves and answer. It is possible. In one of the latest research by Apple, there is a new laptop called Apple M1 chip. In that laptop, they have done something like that only. They have used processor of mobile phone of tablet in the laptop. Okay. Okay. So yeah. So it is possible to do it. Okay, fine. But if I ask you, will that same system work on a server computer, like the NVIDIA computers or the Intel cores which are there in the servers in the supercomputer in ITBHU? Is that system the same as the system in your mobile phone? What do you say? It won't be able to work because it needs more memory and more storage and more processor power. Yes, yes, you are correct. So I will request you कि आंसर देने से पहले ना एक बार अपना नाम बता दो, मतलब मेरे को भी पता रहेगा और तुम लोग भी इन्वॉल्व रहोगे. ठीक है, तो अभी किसने आंसर दिया अपना नाम बता दो. आयुष अग्रवाल. ओके, ठीक है. तो जो ये बात बोल रहा है ना, वो एक्चुअली वी कॉल दैट एज ट्रेड ऑफ्स. बेसिकली कंप्यूटर आर्किटेक्चर में वी मोस्टली वर्क ऑन ट्रेड ऑफ्स. व्हाट दैट मीन्स कि जब हम एक मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, सो वी नीड टू डिज़ाइन द सिस्टम इन सच अ वे कि हमारा पावर और एनर्जी कंस्ट्रेंट मीट हो. The performance is not required is not so great. On the other hand, at the other extreme end of the spectrum, you have the server processors. सर्वर प्रोसेसर्स में पावर एंड एनर्जी कंस्टेंट नहीं है, वहाँ पे यू नीड परफॉर्मेंस. सो दैट इज सो देर यू नीड टू make the systems in such a way कि you get maximum performance even if you consume more power. So that is what we say कि we are always trade off between different parameters, and that is why this field is interesting. Like that is why a company cannot design a chip for mobile phone and use it directly like Apple is doing it, but still I think there will be some modifications, not at the chip level but at the system level. Okay, so you understand there's a difference between a chip and a system. So this difference makes this field interesting, and because there are multitude of devices, like many levels at which devices are used, phones, laptops, servers. If you go now to IoT devices, smartwatches, so everything needs to be designed in a new manner with different trade-offs and constraints. So this makes the field interesting, and this is what the basic things we study in computer architecture. Okay, these are the applications, like these are the applications of what we study in computer architecture. Okay. So going forward, let me go forward. Pretty much ठीक है.
Okay, so now some recent news, so which gives you an idea कि computer architecture क्यों important है and why computer chips in general are important and becoming more important. So the left news on the left, if you read it, it's like Ford, Audi, and Daimler. They have reduced their car manufacturing capacities because they cannot get enough chips, computer chips for their cars because of the strained this, what do you say, the chips, computer chips are the pipeline, the whole supply chain of computer chips has been hit because of the COVID. So they are not the car companies are not able to have reduced their car making manufacturing capacities. So it's so interlinked with everything you see and use in your everyday life. Okay, second one is like the US administration, it is trying to restrict companies like Intel from selling chips to Huawei, Chinese company. So computer chips are being used as a diplomatic tool, like for gaining strategic advantage over other companies, other countries. So you can understand the importance. Okay, so here I will like to, like I would request you to read this, these two lines in brown at the bottom, and like I would, if somebody knows what does the technology parks in South Korea and Taiwan, which companies does this refer to? If somebody can answer. Samsung in South Korea and TSMC in Taiwan. Yeah. So can I please know your name? Aniket. Okay. Yeah, Aniket, you are right. So basically, what this scene is like, there are two things main, you say, verticals in chip industry. One is chip design, and the second one is chip manufacturing. Okay. So chip design means what Nvidia does, what AMD does, what Intel also does. Intel does both. Samsung does both. Okay, TSMC. So I will come to TSMC later. So many small startups, all the people in the academia, they all are doing chip design. They are designing chips, giving ideas on how to design chips. They are not making the chips. The chips, they are made in fabrication plants, and they are very concentrated in only the main manufacturers at state of art cutting edge. They are Intel, USA, this Samsung in South Korea, and TSMC in Taiwan. So and Intel these days is like, if you have read the news, it is lagging behind. Like it is stuck at 10 nanometer technology, whereas Samsung and TSMC have gone to 5 nanometer technology and are moving towards 3 and 2 nanometer. So that also explains the type of relationships you see between US and Taiwan, like why both are coming so close to each other. Like if Intel fails, to make state of the art chips, where would US get its computer chips from? It will get it from TSMC and Samsung. So that's so I think I've been able to make you understand like why computer architecture is an important topic, and why we need to understand this, and a country as a whole needs good computer architects. Okay. So moving forward, I would like to give a brief overview how the field has matured over the years. So in the past, there's one quote by Mr. Bill Gates. He said that 640 kilobytes of memory would be enough for a person, which we very well know is not the case today. And in below you can see just 1 second. An image of ENIAC or EDVAC computer. I don't know which one this is, not sure. But so you see, it is the size of the computer is huge. Now at the present, we have these platforms. We have the Intel Core 11th generation. And okay, so one more question. Can anybody guess which the name of this GPU? It is the latest NVIDIA GPU. The name of the family of the GPU. 3080 Ti. 3080 Ti, like family का क्या नाम है? GeForce.
GeForce तो पूरा गेमिंग लाइन है, फैमिली एम्पियर आर्किटेक्चर है जो लाइक वोल्टा टेस्ला एम्पियर लेटेस्ट। हाँ, तो जो लेटेस्ट अभी NVIDIA GPU है वो दैट इज एम्पियर GPU. So this is where we are presently, and this Ampere GPU is 54 billion transistors. So you can imagine it at 7 nanometer technology. So transistor size is 7 nanometer. So how have we come from this to this? So that is by Moore's law. So another question, can anybody tell what is the Moore's law? And I hope people from first year are also answering. So please, first year students, please answer if you know. If you know, have idea about Moore's law. In every 1.5 years, the number of transistors on a circuit board will double up. Yes, 1 year, 1.5 years, 2 years. So it's rough. It's an estimate. So what's happening that transistor size are going down. Half, they become half approximately every 1 year, then 1.5 years, and then 2 years. Basically, it is slowing down. The rate of decrease of the size is slowing down. And so you have more transistors. You can pack more transistors on the same chip area. So you have better, faster performing chips which can do more work for you. So basically this past to present. And yeah, another question, who gave them like the Moore's law was given by Gordon Moore. So who was Gordon Moore? Like any other thing about him which you would like to? Founder of Intel. Yes, so Gordon Moore is the founder of Intel. So he gave this law. Okay, so this past to present has happened by transistor technology, like I told, and innovations in computer architecture. Like the way chips are made, what is the logic inside the chip, that has changed drastically. The hardware and the software both have changed. That is what has made propelled us from this past to present. Now the question is, what happens in the future? Where do we go from here? So because Moore's law is now falling apart, it's not, the transistors are not becoming smaller. So many different fields, many different domain specific architectures are coming up. What that means is we design different chips for different applications. The chips are specialized for different applications. So that's why we say कि this time is like John Hennessy and David Patterson. They are like the gods of computer architecture. You should go and read कि कौन है लोग. John Hennessy and David Patterson. Okay, so उन्होंने बोला है कि this is like the golden time for computer architecture because everything is changing. Whatever was the previous assumptions, they are falling apart. So we need to think अब कैसे परफॉर्मेंस बढ़ाना है, क्योंकि ट्रांजिस्टर छोटा नहीं हो रहा है अब. तो वी आर मेकिंग डोमेन स्पेसिफिक आर्किटेक्चर्स, एंड एनर्जी एंड पावर इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट टुडे. लाइक इन ए मोबाइल फोन यू कैन नॉट हैव अ चिप विच डिसिपेट्स 100 watts ऑफ पावर. नहीं काम चलेगा, चाहे वो कितना भी अच्छा परफॉर्म कर रहा हो. So in the currently different fields are being explored which are domain specific, like the Lohi chip by Intel, I think Intel or IBM. So it is basically the field is neuromorphic computing. Basically you make hardware for the neural network. The neural network, it is a hardware implemented neural network, very crudely speaking. Okay, this is the T2 chip by Apple, which is a dedicated security chip in the laptops, which they have this in their laptops. This is a chip dedicated for 5G modules. So basically you have this, we will have this in the 5G base stations. And this is made by MediaTek, and this is the quantum computer made by Google. So these are the domain specific areas. Like you make कुछ एक पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, सो यू मेक अ प्रोसेसर, उस फील्ड के लिए प्रोसेसर बनाओ. सो देयर इज अ लॉट ऑफ एक्टिविटी गोइंग ऑन इन दिस फील्ड. ओके, एंड
here I would like to tell something about my research work. So at IIT Delhi, I will be working some on 5G smart architectures for 5G, basically making how to make like you have chips in the base station, the chips everywhere. So base station jo hoga 5G base station, that will have a microprocessor in it, a chip. So you need to make a power efficient chip which is can work all the time. It can communicate at very high frequencies. So with all these multiple constraints, how you design the chip? So this is what I will be working on starting from the next semester. Like first semester it was mostly courses, so I haven't started working on it. Okay, so I will move forward now in the next slide. Okay, so next slide is a bit technical. It is mostly like how where does computer architecture lie? Like what part of the whole computer science or computer spectrum are we talking about? So first, if you see at the top is the problem, like what you see, like self-driving car. It is a problem. You have a idea, you have to solve it. It is a problem. Next, you have algorithms. You have neural networks, which are algorithms. Like they are like how do you solve this problem using a computer? That is an algorithm. So that is a neural network. So next level is a programming language. How do you code this algorithm? Programming languages can be Python, C, which you will be familiar with, and compilers. And compilers hota hai ki which convert the high level programming language to machine code, which the computer can understand. Okay, so GCC is like the compiler for C++. And after that you have the operating systems. Operating systems में जैसे Linux है, Windows है. हाँ, so here I would like to recommend something to all the first and second yearites कि Linux install करके उसको try to start using Linux. That is very helpful later on. Okay. तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या करता है वो प्रोग्राम को लाइक इट रन्स द प्रोग्राम ऑन योर प्रोसेसर. ठीक है, देयर इट इज अ लिंक बिटवीन द सॉफ्टवेयर और जो प्रोसेसर कोड रन कर रहा है द हार्डवेयर, दैट इज द लिंक बिटवीन देम इज द ऑपरेटिंग सिस्टम. सो ओवर हियर कम्स द माइक्रो आर्किटेक्चर और विच वी से द कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर area. ठीक है, so this is where we have the innovations in the computer processor which help to make these programs run faster. Okay, so these are like the multiple domains which you will come across if when you start studying computer architecture, like microarchitectures. It is the like the core computer architecture, the pipelining. If I am just saying these terms, don't get confused. When you start studying this, you will get to know. So I won't be able to explain this because like बहुत लंबा पूरा topic है ये. तो pipelining है, out of order processors है, ये core computer architecture theory है. ठीक है. Then there's compilers. Like compiler कैसे code को optimize करते हैं so that it runs fast on your hardware. Operating systems, virtual memory. This is like a very important topic of operating systems. Okay, system calls, like how does your computer like print, like how does the word program, like the word processor, MS Word, give a print statement to your printer? So that is a system call. So for memory designs, cache designs. So memory design is basically we saw in the previous slides कि memory has become huge today. Like TBs of memory is there in your laptops. How has that happened? How is memory designed to be efficient as well as huge, large size? ठीक है. So these are, and the culmination of all this, like this includes parallel programming, includes everything. Like it has concepts from operating system, compilers, basic core architecture, and memory. So multi-core systems, like today your phones, laptops, they're all multi-core, quad-core processor, octa-core processor. So this is where you study, design such processors. Okay. So one question over here.
Okay, does anybody know how does your laptop at a single point of time, like if you check in your task manager, तुम देखा होगा कि 200-300 प्रोसेसेस रन हो रहे हैं, प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं अलग अलग, तो कैसे होता है? कोई बता सकता है? मतलब किसी को पता है? एनी आइडियाज? ऑपरेटिंग सिस्टम का इफ़ यू हैव सम आइडिया अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है. सो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेयरिंग करता है, लाइक इट रन्स वन प्रोग्राम फॉर सम मिली सेकेंड्स, 1 मिलीसेकंड in fact, not some. Then it goes to the second program. वो ऐसे ऐसे जंप करता रहता है और हमें नहीं पता चलता, क्योंकि हम परसिस्टेंस ऑफ विजन होता है हमारा. हमें बहुत जल्दी जल्दी कोई चीज़ चेंज हो रही हो तो पता नहीं चलेगा कि चेंज भी हो रहा है. तो दैट्स हाउ इट हैपेंस. ठीक है, ओके. सो हाँ, जस्ट वन मोर टेक्निकल स्लाइड एंड देन वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग कि हाउ टू स्टडी दीज थिंग्स. ओके. So this is like how do you study the processors, make changes to a processor? How do you see कि मतलब you cannot manufacture a processor in your lab, like कॉलेज में तो बैठ के चिप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, बहुत महंगा है लैब बनाना. ठीक है, तो हम क्या करते हैं फिर? तो हम आर्किटेक्चरल सिमुलेटर्स बनाते हैं. तो दिस इज़ वेयर सॉफ्टवेयर स्टार्ट्स कमिंग इनटू पिक्चर. यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग, C++ प्रोग्रामिंग, पाइथन, जावा सब आता है. तो ऑल द आर्किटेक्चरल सिमुलेटर्स दे आर रिटन इन C++, जावा. So this is like the bread and butter of computer architecture. Like wherever you go in industry or the academia, colleges, तो वहाँ पे all the experiment happens on architectural simulators. कोई वेरी रेयर कि कोई एक्चुअल चिप पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होगा. ठीक है, इंडस्ट्री में हो रहे होते हैं. मैंने भी किया था NVIDIA में, बट दैट इज़ लाइक इंडस्ट्री में तो होगा, बट इन कॉलेजेस इट इज़ वेरी रेयर. ठीक है, सो डिफरेंट आर्किटेक्चरल सिमुलेटर्स आर देयर. जेम 5 इज़ वन ऑफ देम. बहुत फेमस है ये आर्किटेक्चरल सिमुलेटर. सी में लिखा हुआ है, सी और पाइथन में. सो इफ़ यू सी, और ये दूसरा जो है ये तेजस इज़ बाय IIT Delhi, by Professor Smriti Ranjan Sarangi. Like he's my advisor. So his group has written this architectural simulator in Java. तो इसमें क्या है बेसिकली, पूरा जो सिस्टम है, जो पूरा प्रोसेसर है, उसका कोड लिखा हुआ है. दैट इज इम्प्लीमेंटेड इन अ प्रोग्राम. जावा का कोड है पूरा, मल्टीपल फाइल्स. लाइक जिन्होंने इंटर्नशिप की होगी अभी फर्स्ट सेकेंड ईयर तो नहीं किया होगा, तो जिनकी इंटर्नशिप हो गई होगी दे विल नो कि जो कंपनीज में जो कोड होते हैं, दे आर नॉट लाइक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस. दे आर ह्यूज कोड्स, लाइक बहुत 100 फाइल्स हैं, 200 फाइल्स हैं, और उनमें तुम्हें सर्च करना होता है कि बग कहाँ आ रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है. सो ये एकदम उसी तरह का सेटअप है आर्किटेक्चरल सिमुलेटर्स. ठीक है, इसमें सारे पार्ट्स जो हैं वो अलग अलग इम्प्लीमेंटेड होते हैं इसमें. तो अब यूज़ कैसे करते हैं इसको? इसमें हम पैरामीटर्स डालते हैं. हम इसमें क्या करते हैं कि जैसे मान लो हमें Core i7 इंटेल का सिमुलेट करना है, तो हम निकालते हैं कि Core i7 का एनर्जी रिक्वायरमेंट कितना है, पावर रिक्वायरमेंट कितना है, डायनेमिक एनर्जी कितनी खर्च करता है. यू मस्ट हैव स्टडीड कि डायनेमिक एनर्जी, लीकेज पावर कितना है. तो ये सारी चीज़ें निकाल के वी सेट इट इन द सॉफ्टवेयर, और फिर उस पर प्रोग्राम रन करते हैं. जो भी मान लो हेलो वर्ल्ड रन करना, हेलो वर्ल्ड रन कर दिया. हेलो वर्ल्ड रन करने में कितना एनर्जी खर्च हुआ. सो इट फाइनली गिव्स अस द सिमुलेशन स्टैटिस्टिक्स एंड परफॉर्मेंस. सो ये हमें बताता है कि कितना एनर्जी खर्च हुआ, कितना कैश हिट हुआ है, कितने बेसिकली ये टर्म्स होती हैं, फिर हाउ मेनी इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड. सो ऑल दीज थिंग्स आर गिवन टू अस बाय द सिमुलेटर. तो यहाँ पे द रोल ऑफ सॉफ्टवेयर पर्सन, और लाइक बेसिकली वन हु हैज़ कोडिंग एक्सपीरियंस, कम्स इनटू पिक्चर.
सो ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज ऑल हार्डवेयर. सो बेसिकली इफ़ यू, मेरे को भी when I started working, so first I had not done enough like coding or programming in BTech, so I had to take courses of DSLGO and programming courses, and only then I can work in this area. So if you are good in programming early on, like in BTech, you have done competitive programming, DS, data structures and algorithms. So it is a very good field for you to go into. So that is the basic, like the starting step for entering into computer architecture, you can say. So it is not hardware thing. So just to be clear on that. Okay. So the first part where I wanted to introduce you to computer architecture और क्या होता है इस फील्ड में is completed from my side. तो इसमें कुछ क्वेश्चन है तो you can ask. किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो अभी, else end of the presentation में पूछ सकते हो. ओके फाइन, वी विल मूव फॉरवर्ड. अभी नहीं पूछना किसी को कुछ तो, बट आई वुड सजेस्ट कि किसी को कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो रैंडम, बट तो वो पूछ सकता है. ठीक है, कोई इशू नहीं है. ठीक है, अब है कि सेकेंड पार्ट, लाइक हाउ डू यू स्टार्ट लर्निंग कंप्यूटर आर्किटेक्चर. सो यहाँ पे मैंने लिस्ट किए हैं कि बेसिक क्या चीज़ें होती हैं विच यू require, basic topics which you require for required to study in BTech at BTech level for computer architecture. ठीक है, so it starts from the binary numbers, digital design. I think there's a course also in third year, I suppose. भूल गया मैं कब होता है ये कोर्स. ठीक है, उसके बाद फिर बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर. And on the programming and implementation side, so the first thing is data structures and algorithms, जो कि if you do competitive programming and all, तो ये it is like more than the required. ठीक है. Second one is hardware description languages like Verilog, VHDL. So ये क्या होता है कि like if you want to make hardware, there are softwares for making hardware design, like for designing hardware. So उन software को जो program करते हैं, that is in a different language, Verilog or VHDL. So it is very similar to C programming. So if you are good in the first point, if you are good in competitive, so you will naturally find HDL also easy. You can do it very easily. एक चैट में डाउट आया है. हाँ, कि आयुष ने पूछा है कि इज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एसेंशियल फॉर कंप्यूटर आर्किटेक्चर. हाँ ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है. तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से देखो, एसेंशियल इज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स. कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से क्या होता है, यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दोज कॉन्सेप्ट्स of data structures and algorithms properly, and you तुमको आदत हो जाती है प्रोग्राम लिखने की, कोड लिखने की, बग्स फाइंड करने की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट स्किल है फॉर गोइंग इनटू कंप्यूटर आर्किटेक्चर रिसर्च और के लिए भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो. ठीक है. सो बट यू डोंट हैव टू डू कॉम्पिटिटिव एट द लेवल की जिसपे बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट में जाने के लिए, गूगल में जाने के लिए, ऊबर में जाने के लिए करना पड़ता है. वो नहीं करने की ज़रूरत है तुम्हें, मतलब लाइक, बट यू शुड बी कंफर्टेबल विथ राइटिंग प्रोग्राम्स एंड फाइंडिंग बग्स इन प्रोग्राम, दैट इज़ ऑल. ठीक है. और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम स्ट्रॉन्ग अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए. तो इस सेंस में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हेल्पफुल होता है. ठीक है. तो आयुष, आई थिंक
क्वेश्चन आंसर हो गया तुम्हारा? ओके, तो आगे बढ़ते हैं. सो इन दिस आई हैव इंक्लूडेड कि सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से पढ़ें. तो कोर्सेज हैं ये. एक प्रोफेसर सारंगी का एक कोर्स है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर वीडियोस. उनका यूट्यूब चैनल है, उस पर ये वीडियोस हैं. ठीक है, तो इसमें बहुत सिंपल लैंग्वेज में एंड वेरी like going step by step, he has explained all the concepts, so you can refer to these videos. They are very good for basic computer architecture. And एक बार ये कर लो तो you can see these videos of MIT OpenCourseware. 6004 is the course in MIT for computer architecture and digital design. So you can ये कर सकते हो after doing the first one. Okay, so but this one is like essential. This is just for you, like agar और explore करना है तो. Books, coming to books, like it is, the first one is Digital Design by Morris Mano. This is, I think you will study in your course also, and this is for binary numbers, digital design, and it also has HDL Verilog coding. So the thing I was saying about the Verilog programming is covered in this part also, in this book. And for these, ये जो slides हैं, for them you have this book by Professor Sarangi again. So this is exactly the same, like basically it is, इसमें और अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हैं चीज़ें जो इस स्लाइड में है. ठीक है, इन वीडियोस में है. तो आई विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ. ठीक है, सो इफ यू सी द like how you can approach this whole computer architecture thing. So starting में you should be comfortable with data structures and algorithms. This is essential. CP is ठीक है, CP का बाद में डिस्कस करते हैं. डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के साथ कंफर्टेबल हो जाओ. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ट्रीज नहीं पता क्या है, ग्राफ्स नहीं पता क्या है, सबका आइडिया होना चाहिए. बिकॉज जब तुम पढ़ोगे, वीडियोस देखोगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर की, तो उसमें यू विल रियलाइज कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, टू अंडरस्टैंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर. तो ये फर्स्ट स्टेप है. सेकेंड वन इज डिजिटल डिज़ाइन, जो कि तुम्हारे कोर्स में भी आएगा, बाय मॉरिस मैनो. ये बुक है मॉरिस मैनो की. तो ये दिस इज द सेकेंड स्टेप. फॉर उसके बाद यू कैन वॉच द यूट्यूब वीडियोस फॉर कंप्यूटर आर्किटेक्चर. और इसमें भी यू डोंट नीड टू वॉच ऑल द वीडियोस. इसमें लाइक इट्स लाइक कि जहाँ तक कर लो ठीक है. बेसिकली देयर आर सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड देन यू कैन लीव. ठीक है, ठीक है. उसके बाद ये सब कर लिया अगर, तो ये लाइक दिस फिनिशेज योर थ्योरी पार्ट. इसके बाद यू जस्ट नीड टू राइट प्रोग्राम्स. दिस CP is great because it helps you to write programs and debug. If you can do it some other way, it is fine. Like you don't need to do competitive programming जो कॉलेज में बोलते हैं वो नहीं करना है. exactly मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम प्रोग्रामिंग के साथ और डिबगिंग के साथ कंफर्टेबल होने चाहिए. उसके बाद यू कैन प्रैक्टिस, ये इस बुक में वो भी ये दिए हुए हैं वेरीलॉग कोड्स, उससे प्रैक्टिस कर लो थोड़ा सा. ठीक है, ये MIT वाले लेक्चर्स देख सकते हो. दिस इज़ लाइक ऑप्शनल, बिल्कुल ऑप्शनल है, ये अपने तुम्हारे ऊपर है. उसके बाद फॉर प्रोजेक्ट, तो ICHIP जो है इवेंट, दैट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर डूइंग अ प्रोजेक्ट, हैविंग अ गुड project in computer architecture. And if you have done all of these things, I think you will definitely win in ICHIP. ठीक है, और ये टॉपिक्स जो हैं, these are advanced topics. these are like 4th ईयर में हो और मतलब भी मन कर रहा है कि थोड़ा और पढ़ लेते हैं इसके बारे में कंप्यूटर आर्किटेक्चर को. लाइक यू हैव डिसाइडेड कि मेरे को इसी में जाना है, तो ये पढ़ सकते हो. दिस इज़ लाइक ये बात का है. मोस्टली यू विल स्टडी दिस इन इफ़ यू गो फॉर M.Tech और MS. ठीक है, ठीक है. सो अभी मैंने कवर किया कि क्या क्या मटेरियल
है पढ़ने के लिए, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने होंगे एट बीटेक लेवल। लाइक इट्स नॉट पढ़ने होंगे, इट्स लाइक कि दिस इज अ गाइडेंस फॉर यू कि तुम अगर करना चाहते हो एंड यू आर कन्फ्यूज लाइक आई वॉज इन ड्यूरिंग माई बीटेक डेज कि कहाँ से पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ मैं इसमें, हाउ टू अप्रोच दिस। तो इट इज़ अ गाइडेंस फॉर यू कि तुम ऐसे अप्रोच कर सकते हो। बाकी यू नीड टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि तुम्हें पहले क्या करना है बाद में क्या करना है, वो वेरिएबल हो सकता है। तो अभी तक मैं किसी को कुछ पूछना है लाइक वन क्वेश्चन वॉज कि सीपी ज़रूरी है क्या, तो उसका आंसर है नहीं, नॉट द सीपी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर कंपनी प्लेसमेंट्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनीज वाले के उसके लिए नहीं चाहिए, वो लेवल नहीं चाहिए। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो अभी, फिर नहीं तो फिर आगे बढ़ूंगा। इस पार्ट में तो कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि क्या पढ़ना है किसी को, मतलब जो डिजिटल डिज़ाइन में किसी को भैया ये सब इंटरेस्ट हो। कब से हाँ पढ़ना है? भैया ये हाँ सब स्टार्ट कब से करें? हाँ, तो जैसे डिजिटल डिज़ाइन जो है तुम अगर हाँ लाइक आई सेड कि ये जो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम तो तुम फर्स्ट ईयर में कर सकते हो एंड कर, मतलब लाइक अब कोर्स भी अभी फर्स्ट ईयर वालों को कोर्स है क्या डीएसएल का? हाँ भैया उनके ऐड किए है इस साल, मतलब नए स्ट्रक्चर में ऐड किए। ठीक है, तो डीएसएल का कोर्स हो गया। अब जिसको मतलब इंटरेस्ट है, लाइक जो कोर वाले लोग हैं वो जाना चाहते हैं इसमें एक डिजिटल डिज़ाइन, सो दिन उनको डिजिटल डिज़ाइन तो पढ़ना होगा। तो डिजिटल डिज़ाइन के लिए ये बुक है, ये तुम लाइक इंटर्नशिप से जो पहले का टाइम होता है, लाइक प्रिपरेशन फॉर इंटर्नशिप जो टाइम है उसमें पढ़ सकते हो। ठीक है, और ये जो पार्ट है ना, दिस इज़ लाइक कि ये चेरी ऑन द केक है, ये तुम जितना कर लो उतना अच्छा है टाइप ऑफ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है इसको कंप्लीट करना है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर बीटेक लेवल पे इफ़ यू नो सम कॉन्सेप्ट्स वो इनफ है। ठीक है, तो यू कैन, तो इसमें तुम अगर वीडियोस देख लेते हो, कुछ 20 वीडियो होंगी 1-1 घंटे की, तो वो हो गया काम तुम्हारा। ठीक है, तुम्हें बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बुक मैंने ये मोर देन रिक्वायर्ड बताई हैं चीज़ें। तो सो तो आई थिंक कि बिफोर सिटिंग फॉर योर इंटर्नशिप्स तुम ये 3 चीज़ कर लो अगर। ठीक है, आईचेप में पार्टिसिपेट किया और उसमें प्रोजेक्ट हो गया तुम्हारा, तो ये इनफ है मेरे, आई थिंक कि ये इनफ है फॉर अब फॉर दिस। ठीक है, तो क्लियर हुआ थोड़ा सा? यस भैया। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? अब समझ नहीं आ रहा है क्या, या मतलब क्या हो रहा है, या कम समझ आ रहा है, या तो सारी चीज़ें समझ आ जा रही हैं, यूज़फुल नहीं लग रहा है, या समझ नहीं आ रहा है? बता दो, डिपेंडिंग ऑन दैट वैसे ही बताऊंगा मैं। भैया थोड़ा सा चुप ही रहते हैं सेशन में ज़्यादा, पता नहीं क्यों, जूनियर्स का। चलो ठीक है, कोई नहीं। हाँ ऑफलाइन में भी लोग नहीं पूछते थे, ऑनलाइन में तो क्या ही बोले, नहीं पूछेंगे तो फिर तो कुछ नहीं बोल सकते। हाँ हाँ, मतलब कोई ऐसे डर रहा हो तो यार अपने सीनियर ही हैं, मतलब ऐसे प्रॉफ जैसे मत करो कि पूछने में डर रहे हो, पूछ सकते हो भैया आगे से पूछ रहे हैं तो। कोई भी या रैंडम क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ें तो पूछ लेना, कोई भी सिली क्वेश्चन हो, कुछ भी लगे तो पूछ लो। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड में जाने के लिए वो तो ज़रूर पूछो, उनको तो आ रहे होंगे क्वेश्चंस कि हाँ क्या करना है, कैसे करना है, समझ नहीं आ रहा, मेरे को तो आते थे। तो तुम पूछ सकते हो। तो दैट वही मोटिव है मतलब इस टॉक का, कि जो जानना चाहते हैं और उनको नहीं पता चल पा रहा है कि कैसे अप्रोच करना है, दे शुड कम, उनको पता चल जाए। ठीक है, अच्छा, तो आगे चलते हैं। तो अब कौन कौन सी कंपनीज आती हैं इस तरह का, अगर तुम चीज़ें पढ़ लो तो किस कंपनी में तुम जा सकते हो?
सो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स डिजिटल प्रोफाइल में, ठीक है, एनालॉग प्रोफाइल अलग होता है, उसके लिए यू नीड टू स्टडी वो जो एक ये RC सर्किट्स वाला कोर्स होता है एक, वो पढ़ना पड़ेगा, पर वो उसमें नहीं जा रहा मैं। डिजिटल प्रोफाइल हो गया, क्वालकॉम, एनवीडिया, इंटेल, वेस्टर्न डिजिटल भी आई थी इस बार, सैनडिस्क लाइक उसके अंडर में है, मिंटर ग्राफिक्स और NXP भी आई थी। तो दीज आर ऑल ओपन फॉर यू। और ऐसा होता है कि कंपनीज दे टेक यू कि तुम्हें आता है या नहीं आता है। सो ऐसा नहीं है कि उनको एक ही लेना है, दो ही लेना है, उनको दो अच्छे लोग मिलेंगे तो दो भी ले लेंगे वो, मतलब सिमिलर लेवल के। तो इफ़ यू हैव दिस नॉलेज, ये सब पढ़ा हुआ है तुमने, तो कंपनीज लेंगी तुमको, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये हुआ IIT-BHU में, ठीक है। अगर मान लो अब मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ कि देर आर सम पीपल की जो जाना चाहते हैं, वो दोज हु वांट टू गो फॉर हायर स्टडीज़, ठीक है। नाउ इफ़ यू गो टू हायर स्टडीज़ इन US, तो वहाँ पे ऑल दीज 5 कंपनीज विच यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ये सब दे टेक पीपल इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एप्पल, फेसबुक। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों लेते हैं लोग। तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा था कि अब जो है ना, सब लोग अपना डोमेन स्पेसिफिक, एवरीबडी इज मेकिंग इट्स देयर ओन चिप्स, क्योंकि जनरल चिप बना के ज़्यादा फ़ायदा हो नहीं रहा है, सब अपना खुद का चिप बना रहे हैं। तो इसीलिए ये लोग भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर फील्ड में रिक्रूट करते हैं। और देयर आर मेनी पीपल हु आर देयर इन माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, एप्पल, फेसबुक में कम है कंपेरेटिवली, हु आर लाइक मास्टर्स इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर या PhD इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। सो इफ़ यू वांट टू गो इन दैट डायरेक्शन, वहाँ स्कोप और ज़्यादा है, ठीक है। और गूगल का हार्डवेयर टीम बैंगलोर में भी है, बट वो हमारे यहाँ नहीं आता है प्लेसमेंट्स के लिए, IIT खड़गपुर से बहुत लोगों को लेता है। उसके बाद देयर इज़ करियर इन रिसर्च लैब्स इन इंडिया। सो इंडिया में इंटेल लैब्स है, AMD रिसर्च है, IBM रिसर्च है, साइनॉप्सिस रिसर्च है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, बट दे प्रेफर पीपल हु हैव MS एंड PhD डिग्रीज, ठीक है। सो वो बट लाइक आई वांट दिस प्रेजेंटेशन टू बी लाइक एग्जॉस्टिव, कि तुम्हें बाद में भी कुछ ज़रूरत पड़े तो यू कैन लुक इनटू दिस, ठीक है। ऐसा नहीं मैं सिर्फ अभी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और जो भी कंपनीज यहाँ पे हैं, ये और ये, इन सारी कंपनीज के रिसर्च लैब्स हैं US में। सो इफ़ यू सो बेसिकली इफ़ यू आर गोइंग फॉर मास्टर्स इन US इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर फील्ड, योर अपॉर्चुनिटीज लाइक दे इंक्रीज मैनी फोल्ड, ठीक है। तो ये है कि करियर अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। अब अपने कॉलेज में क्या सीन है, अपने कॉलेज में इफ़ यू सी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में, मान लो तुम 10-10 बच्चे हैं जो सीरियसली, जो कि नहीं होते, इतने भी नहीं होते, अप्रोच कर रहे हैं इस एरिया को, ठीक है। और तुम अगर मान लो कि यहाँ जो कंपनीज लिस्टेड हैं, ये हर कंपनी 2 लोग को लेगी, जो भी, जो कि ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक ठाक एवरेज है, तो 14-15 लोग, ठीक है। तो ये रेशियो अगर तुम देखोगे कि कितने लोग आ रहे हैं और कितने लोग की प्लेसमेंट हो रही है इस एरिया में, तो ये बहुत अच्छा रेशियो है इनफैक्ट। मतलब अगर तुम इस फील्ड को सीरियसली परस्यू करो, तो तुम वेल प्रिपेयर्ड हो अगर, तो तुम्हारा यू विल गेट अ गुड प्लेसमेंट ऑफर फॉर श्योर, ठीक है। बट यू नीड टू बी अ लिटिल बिट श्योर अबाउट दिस कि मेरे को इसमें जाना है और इसमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉर्मल कोर्स वर्क में नहीं होगा, बाकी लोग नहीं कर रहे होंगे बेसिकली, बाकी लोग नहीं कर रहे होंगे, मोस्टली लोग नहीं कर रहे होंगे, मैं ये कह रहा हूँ। तो यू नीड टू डू एक्स्ट्रा वर्क ऑन दिस, ठीक है। बट इफ़ यू डू दैट, तो ऑलमोस्ट पक्का है जॉब, ठीक है। ये भी है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें मतलब किसी को कुछ प्लेसमेंट सिनेरियो के बारे में पूछना है तो पूछ लो, कि क्या कैसे जॉब लग जाती है या नहीं लग जाती है, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो। यह एक प्रशस्ति त्रिपाठी का क्वेश्चन है कि भैया, इफ यू वांट टू गो फॉर MS एंड इफ वी don't have those courses in our ECE BTech curriculum, but we learn those topics on our own,
then will the universities ask for a professional certification for completing those courses, or simply self-taught thing will work? मतलब बेसिकली ये पूछ रही कि ये जो कोर्स कंपनीज यूनिवर्सिटीज इनके सर्टिफिकेट्स मांगेगी क्या ऑन पाथ कोर्सेज के? हाँ, सो बेसिकली मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आंसर ये है कि सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है, नॉलेज चाहिए होती है बस। मतलब वो इंटरव्यूज़ लेंगे, तुम्हारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो देखेंगे, तुमने जो कोर्सेज अगर तुम मूक्स पे कर रहे हो, ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हो, खुद से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वो भी लिख सकते हो तुम, ठीक है। एंड सो बेसिकली वो एंड हायर स्टडीज़ में जाने के लिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज़ अ वेरी गुड फील्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। तो उस पर मैं लेट अभी थोड़ी 2-3 स्लाइड बाद आता हूँ। बट इस क्वेश्चन के लिए मतलब द आंसर इज़ कि तुम्हें सर्टिफिकेट्स नहीं चाहिए। इफ़ यू हैव स्टडीड द कोर्स ऑन योर ओन, यू कैन डिस्प्ले दैट नॉलेज, तो वो इनफ है, ठीक है। भैया उज्जवल पूछ रहा है कि कैन यू शेयर योर इंटर्नशिप इंटरव्यू एक्सपीरियंस? अच्छा, ये लास्ट में करते हैं स्लाइड्स ख़त्म करके, नहीं तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और फिर एक और महेश ने पूछा है कि इंटर्नशिप्स का क्या सीन है इस फील्ड में? तो इंटर्नशिप्स का, अच्छा, इंटर्नशिप में टीआई आती है, क्वालकॉम आती है और एनवीडिया आती है, मिंटर ग्राफिक्स आती है, इंटेल नहीं आती है, ये तीनों नहीं आती हैं, बाकी ये 4 कंपनीज आती हैं। हाँ, तो इंटर्नशिप्स का भी सीन ऐसा है कि एनवीडिया, जैसे एनवीडिया 3 से 4 लोगों को लेती है, ठीक है। और क्वालकॉम का मेरे को ध्यान नहीं है कितने लोगों को लिया था। तो मतलब देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर तुम डिसाइड कर लेते हो कि मेरे को जाना है, मान लो मेरे को क्वालकॉम में जाना है, टेक्सास में जाना है, या एनवीडिया में जाना है, मिंटर में जाना है, तो अगर तुम डिसाइड कर लेते हो एंड यू स्टडी इन दिस डायरेक्शन, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम है। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम लोग कर रहे होंगे तैयारी स्पेसिफिकली उस कंपनी के लिए, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? नहीं, फिलहाल तो यही थे। और एक वो उज्जवल का, अच्छा, हाँ, एक आया है कि भैया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिजिटल एंड हार्डवेयर प्रोफाइल? कोई खास डिफरेंस नहीं है। डिजिटल, अच्छा ये, अरे नहीं, ये डिजिटल, इसमें यार ये प्रोफाइल का नाम है। इसमें टेक्सास में 2 होते हैं, डिजिटल प्रोफाइल और एनालॉग प्रोफाइल। एनालॉग प्रोफाइल जो होती है ना, उसमें वो पूछते हैं एनालॉग सर्किट्स के क्वेश्चंस पूछते हैं ज़्यादा वो लोग। डिजिटल प्रोफाइल में वो डिजिटल डिज़ाइन ज़्यादा पूछते हैं, लाइक ये सब लॉजिक गेट्स और ये सब कंप्यूटर आर्किटेक्चर साइड। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में नहीं जाते हैं ज़्यादा, ठीक है। हार्डवेयर प्रोफाइल इज सेम जो डिजिटल प्रोफाइल बोल रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। अब ये है कि लाइक एक क्वेश्चन था कि हायर स्टडीज़ में जाना है अगर, तो व्हाट दे कैन डू। तो मतलब जाना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स को कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हायर स्टडीज़ में या नहीं? तो एक्चुअली कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो फील्ड है उसमें मतलब यू नीड सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपर्टीज टू डू सम गुड रिसर्च वर्क। तो इसके लिए ये एरिया में, अगर बिकॉज ऑफ दिस अगर तुम हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हो, सो दिस इज़ अ वेरी गुड फील्ड टू गो इनटू, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिमांड ऑल्सो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स जो हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स बीटेक जो है बेसिकली उनके लिए बहुत अच्छी फील्ड है टू गो इनटू फॉर हायर स्टडीज़, क्योंकि कंप्यूटर आर्किटेक्चर मोस्ट बेसिकली है कंप्यूटर साइंस का फील्ड। तो अगर तुम ये देखोगे कि मोस्टली कंप्यूटर साइंस वाले लोग हायर स्टडीज़ में कंप्यूटर आर्किटेक्चर में नहीं जाते हैं,
ठीक है, बट जब तुम मान लो, बट व्हेन द प्लेसमेंट्स हैपन, तो वो लाइक प्लेसमेंट्स या जो भी अपॉर्चुनिटीज है वो, इफ यू गेट इनटू कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, लाइक सो इट बिकम्स ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है। तो सो इन दैट सेंस, एंड बिकॉज तुम्हारा बैकग्राउंड है, लाइक डिजिटल डिज़ाइन में बैकग्राउंड है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बेसिक्स पढ़े हुए हैं, और तुमने यू हैव गुड प्रोग्रामिंग स्किल्स। प्रोग्रामिंग स्किल्स गुड का मतलब है कि तुम्हें प्रोग्राम लिखने से डर नहीं लगना चाहिए, प्रोग्राम तुम लिख पा रहे हो, डिबगिंग कर पा रहे हो, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स तुम्हें आता है, तो दिस इज़ इनफ टू गेट इनटू हायर स्टडीज़ इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है। इसके लिए मतलब तुमको कोई एमएल का कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कंप्यूटर विजन, एआई, कोई कोर्स ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली गेट इनटू हायर स्टडीज़ विद दिस मच, और जो विद दीज स्किल्स, एंड जो साथ में हर हायर स्टडीज़ के लिए चाहिए होता है गुड CGPA, वो तो है ही, मतलब वो तो तुम किसी फील्ड में जाओ तो चाहिए। तो अब तुम एक्सप्लोर कैसे कर सकते हो, लाइक व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर हायर स्टडीज़। MS या PhD है अब्रॉड से, US से या यूरोप में। MS एंड PhD इन इंडिया, ये भी अब काफ़ी मेच्योर हो गया है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर रिसर्च इन इंडिया, ठीक है। सो यू कैन एक्सप्लोर दिस ऑल्सो। और अगर तुम्हें श्योरिटी नहीं है तो यू कैन गो फॉर रिसर्च इंटर्नशिप्स, इंडिया में भी और US में भी, लाइक देयर आर इंटर्नशिप्स। अब तो रिमोट होंगी, पता नहीं अब कैसे होगा। जो US में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, एक क्या नाम होता है, विटरबी स्कॉलरशिप होता है, एक तो वही क्या नाम, SN Bose स्कॉलरशिप होते हैं, ठीक है। तो यू कैन एक्सप्लोर दोज ऑप्शंस, और इंडिया में तो बहुत सारे हैं, ठीक है। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर हायर स्टडीज़, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो। सो आई वांट टू कवर ऑल द फुल स्पेक्ट्रम, तो कोई छूट किसी को अगर, अब ये है कि हाँ, इफ़ यू वांट टू गेट टू नो कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जो लोग काम कर रहे हैं, जो प्रोफेसर्स काम कर रहे हैं, वो उनके क्या आइडियाज़ हैं, मतलब वो क्या काम कर रहे हैं, तो यू कैन फॉलो दीज 2 प्रोफेसर्स। इनके वेब पेज पे तुम जाओ। ये जो प्रॉफ है इनका समर स्कूल और विंटर स्कूल होता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर के लिए, तो इन दैट दे गिव की, तो ऐसा ही इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ दिस कि क्या क्या मेन टॉपिक्स होते हैं जो वो पढ़ाते हैं उसमें। सो यू कैन गो फॉर दिस इज़ वेरी, मतलब ये बहुत बेनिफिशियल होगा बीटेक स्टूडेंट्स के लिए, अगर वो ये समर स्कूल्स करते हैं तो उनको CV में लिखने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है ये, ठीक है। इनके ब्लॉग्स तुम पढ़ सकते हो, इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है, क्यों यूज़फुल है, इन वेरी लाइक बेसिकली बहुत फन वे में, ठीक है। अच्छा, ये मेरे प्रॉफ हैं अंडर हुम आई एम वर्किंग करेंटली, इनके भी ब्लॉग्स तुम पढ़ सकते हो। जनरल ब्लॉग्स, जनरल क्वेश्चंस ऑन PhD, हायर स्टडीज़, बहुत कुछ पे लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स लोगों के लिए, वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी फील्ड है, क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं मेरे लैब में। सिक्योरिटी, लाइक हार्डवेयर सिक्योरिटी पे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, आर्किटेक्चर्स फॉर 5G पे हो रहा है, आर्किटेक्चर्स फॉर AI, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एनर्जी हार्वेस्टिंग डिवाइसेस इज बेसिकली कि पावर और एनर्जी कंस्ट्रेंट में डिवाइसेस को कैसे बनाया जाए, मतलब कैसे वर्क करेंगे वो, ठीक है। ऑप्टिकल इंटरकनेक्ट्स, मतलब दो कोर को कनेक्ट करने के लिए ऑप्टिकल सिग्नल्स यूज़ करना, ठीक है। सो मल्टीपल सच थिंग्स। सो इफ़ यू सी, इट इज़ नॉट लाइक कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम को सिर्फ हार्डवेयर चाहिए या सिर्फ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ही कर रहे होगे। दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, बीटेक में वो सब करते हो। उसके बाद अगर इफ़ यू गो फॉर हायर स्टडीज़, देयर इज़ लाइक मल्टीपल थिंग्स यू कैन गो इनटू। और यहाँ पे तुम्हें देख रहा होगा कि CSE इलेक्ट्रॉनिक्स सब मर्ज हो गया है यहाँ पे, इसीलिए ये बहुत अच्छा फील्ड है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स पीपल, ठीक है। तो और ये एक यूट्यूब वीडियो है बाय दिस 2 लेजेंड्स, यू कैन वॉच दिस। इसमें मतलब बताया कि क्यों कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज लाइक इट इज़ अ वेरी गुड टाइम टू बी अ कंप्यूटर आर्किटेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एड्रेस कर रहा हूँ इस स्लाइड में कि जो लोग 3rd ईयर में है, 4th ईयर में है, और जो शायद सोच रहे हो हायर स्टडीज़ में जाना है, तो
उनको कन्फ्यूजन है कि मतलब क्या हो रहा है और लोग क्या कर रहे हैं, कोई कर भी रहा है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में काम, उनको मतलब कोई दिख नहीं रहा है तो, और कोई काम करते हुए, तो दे कैन अटेंड कॉन्फ्रेंसेस है कि मतलब जो जैसे बेसिकली मीटिंग्स होती हैं और कुछ नहीं, जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर कम्युनिटी है वर्ल्ड वाइड, उनकी मीटिंग्स होती हैं, तो यू कैन अटेंड दैट। और वो जो हैं वो ऑनलाइन हो रही हैं कोविड में, और रजिस्ट्रेशन फीस बहुत कम है, तो ये मतलब पहले डॉलर्स में होती थी, तो वो जाके होती थी, तो वो तो मतलब कोई सवाल नहीं होता जाने का, ठीक है, अनलेस यू हैव अ पेपर इन द कॉन्फ्रेंस, बट नाउ यू कैन अटेंड इट ऑनलाइन। तो मैंने मतलब इसका इज़ द लाइक द टॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इंटरनेशनल सिम्पोजियम ऑन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो मैंने ये अटेंड किया था, उसमें आई गॉट टू टॉक विद दिस प्रोफेसर नेथन बेकमैन। ही टीचेस एट ही इज़ अ प्रॉफ एट कार्नेगी मेलॉन यूनिवर्सिटी, और उन्होंने मेरे को बताया कि कैसे लाइक क्या स्कोप है फील्ड का, क्या हो रहा है, रिसर्च क्या क्या हो रही है, हाउ यू कैन अप्लाई टू यूएस यूनिवर्सिटीज़ विथ व्हाट यू रिक्वायर फॉर अ गुड एप्लीकेशन। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस किया था मैंने। सो इफ़ यू आर एट दैट लेवल पॉइंट कि तुम डिसाइड करना है कि हायर स्टडीज़ में जाना है नहीं जाना है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, एंड फॉर अदर फील्ड्स ऑल्सो, जैसे कि एमएल में, कंप्यूटर विजन में, यू वांट टू डिसाइड, नहीं पता कि क्या चल रहा है फील्ड में, तो तुम कॉन्फ्रेंसेस देखो, अटेंड करो, वहाँ पे लोगों से मिलो, बात करो। और पीएचडी इन दैट कॉन्फ्रेंस मैंने और पीएचडी स्टूडेंट से भी बात किया, और एएमडी रिसर्च से, आईआईटी कानपुर के थे, यूआईयूसी यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस, ये टॉप कॉलेज है फॉर कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है। तो सब जगह से लोग आते हैं वहाँ पे। इन योर फील्ड ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट तुम कॉन्फ्रेंसेस ढूंढो और वहाँ पे लोगों से तुम मिल सकते हो, ठीक है, जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज लाइक एडवांस स्टेज है, ये बहुत बात की बात है, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो मेन चीज़ें भाई, थी वो मैंने बता दिया है। कुछ डाउट्स आए हैं भैया। हाँ पूछो, हाँ बताओ। प्रणव है सेकंड ईयर से, वो पूछ रहा है कि भैया आपने कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करी थी कंप्यूटर आर्किटेक्चर से पहले, कि बिफोर चूजिंग कंप्यूटर आर्किटेक्चर व्हाट ऑल फील्ड्स डिड यू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज। ओके ओके, ठीक है, ये मैं उसी में बताता हूँ कि रिसर्च एक्सपीरियंस कैसा था इंटर्नशिप का, उससे पहले क्या किया था मैंने, ठीक है। मैं अपना स्टोरी सुना दूंगा एक बार, अच्छा, ठीक है। और एक शाश्वत का डाउट है कि हाउ डू वी अप्रोच फॉर रिसर्च इंटर्न्स इन इंडिया, मतलब इन दिस फील्ड इन इंडिया। हाँ ठीक है, तो शाश्वत का ये जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है। तो इंडिया में रिसर्च इंटर्नशिप्स के लिए तो बहुत ही सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लाइक भाई अभी सब कोविड में सब चेंज हो गया होगा, तो वो तुम्हें देखना पड़ेगा। मेरे टाइम पे तो लाइक सारे आईआईटीज़ के इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते हैं, ट्रिपल आईटी हैदराबाद का इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, यू कैन डायरेक्टली टॉक टू प्रोफेसर्स, और वो तुम इंटर्नशिप कर सकते हो उनके साथ। तो आई वुड सजेस्ट कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना वो पर्सनली कांटेक्ट करके मेरे से बात कर लेगा, तो मैं उसको बता दूंगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं बेसिकली। तो एंड इफ़ यू एक्सप्लोर इंटरनेट पे ढूंढोगे, जैसे आईटी गांधीनगर का इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, आईटी कानपुर का होता है, आईटी दिल्ली में होता है, और ट्रिपल आईटी हैदराबाद का होता है। तुम डायरेक्टली बात कर सकते हो प्रोफेसर्स के, किसी भी कॉलेज के, तो वो एक ऑप्शन तो है ही, ठीक है। तो तुम अलग से बात, जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना वो अलग से बात कर लेना, मैं एग्जैक्ट डिटेल्स अलग से बता दूंगा, अभी सब चीज़ बताने का कोई मतलब नहीं है। और एक यशांक ने पूछा है कि भैया हाउ टू क्लैरिफाई वेदर वी शुड फोकस ऑन कोर और नॉन कोर, क्योंकि अभी तो कुछ पता ही नहीं है, लाइक फर्स्ट ईयर से है इसी। ठीक है, तो देखो ये तुम्हें डिसाइड करने के लिए, हाँ सो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि देखो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम जो टॉपिक है और जो प्रोग्रामिंग है, नॉट द कॉम्पिटिटिव में भी तुम्हें प्लेसमेंट लेवल पे नहीं जाना है कि बहुत
बहुत प्रैक्टिस नहीं, बट एक बेसिक लेवल पे तो करना चाहिए, ठीक है। तुम इस लेवल तक कर लो, ठीक है ना। उसके बाद तुम एक्सप्लोर कर सकते हो दूसरी चीज़ें। तुम डिजिटल डिज़ाइन का तुम्हारा कोर्स होगा, ये सेकेंड ईयर में कोर्स होगा, तो उसमें तुम यू विल बी इंट्रोड्यूस टू दैट। तो तुमको अगर वो अच्छा लगे तो तुम मॉरिस मैनो बुक पढ़ो, तुम उसमें देखो कि क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तुमको वो अगर अच्छा लगे तो तुम कंप्यूटर आर्किटेक्चर बेसिक पढ़ो, ठीक है। तो बेसिकली एक बार तुम अपना ये जो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है ना, उसको यू मेक दैट पार्ट स्ट्रॉन्ग मतलब यू मेक दैट पार्ट इनफ कि इसमें मतलब अगर यू कैन गो टू बोथ साइड्स। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर तुम उस पार्ट को अपना ठीक रखते हो ना तो यू कैन गो टू बोथ साइड्स। तो उस पार्ट पे फोकस करो पहले अभी, और फिर सेकेंड ईयर में यू एक्सप्लोर बोथ द थिंग्स, ठीक है। तुम मतलब एक्सप्लोर करना शुरू कर दो कि डिजिटल डिज़ाइन में क्या है, बुक पढ़ो, थोड़ा सा नेट पे देखो क्या है, और उसमें अगर इंटरेस्ट आए तो बढ़िया है, नहीं इंटरेस्ट आ रहा तो तुम अपने कोडिंग प्रोग्रामिंग पे फोकस करो, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो। और कोई क्वेश्चन है? अभी के लिए हो गए। अच्छा हाँ, और अगर मैं क्वेश्चन का आंसर जो दे रहा हूँ कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर री क्वेश्चन पूछ सकते हो, ऐसा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मोस्टली यही था मेरे स्लाइड्स में। एक चीज़ अब ये है कि मैं ये बोलूँगा सब लोग अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बना लेना, ठीक है, अच्छे से एकदम, बहुत ज़रूरी होता है, और लोगों से कनेक्ट करने में बहुत हेल्पफुल होता है। यू कैन टॉक टू लाइक जो लोग तुम्हारे एरिया में काम कर रहे हैं, इनफैक्ट किसी भी फील्ड में हो तुम, और ये चीज़ कोई फील्ड स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी फील्ड में तुम काम करो, तुम प्रोग्रामिंग मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल में जाना है या किसी भी फील्ड में जाना है, ठीक है। अच्छा, स्पेसिफिक टू दिस कंप्यूटर आर्किटेक्चर ये है कि अगर तुम देखोगे कि जो लोग काम कर रहे हैं लाइक एनवीडिया रिसर्च में, एएमडी रिसर्च में, या इंटेल लैब्स में इंडिया में, सो बहुत सारे लोग हैं उसमें जो बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ठीक है। तो यही पॉइंट है कि बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर गोइंग इनटू हायर स्टडीज़ इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ये मेन टेक होम पॉइंट है जो मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो लिंक्डइन को फुल यूटिलाइज करो कनेक्शन बनाने के लिए, ये सजेशन है, ठीक है। और फिर ये लास्ट स्लाइड है मेरा, लाइक तो दिस वर लाइक ये चीज़ें थी जो बताना था मेरे को कंप्यूटर आर्किटेक्चर फील्ड में। और ऐसा नहीं था कि मतलब मैं सिर्फ अपने कॉलेज के रिस्पेक्ट से बता रहा हूँ, आगे क्या अपॉर्चुनिटीज़ है मैं उसको भी कवर कर रहा हूँ, ताकि यू एक्सप्लोर अदर अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट टू, ठीक है। यू शुड नॉट रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ कि कोई मिल नहीं रहा करने वाला, कुछ पता ही नहीं चल रहा मेरे को, तो वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बाकी तुम अपना खुद से एक्सप्लोर करो, यू टॉक टू पीपल, टॉक टू मी, और अगर तुम करना चाहते हो इस एरिया में काम तो यू कैन मैसेज मी, वी कैन डिस्कस कि तुमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कोई टॉपिक पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ये सब पूछना है तो यू कैन आस्क मी। आई गिवन माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ये स्लाइड्स जो है ना ये शेयर कर दूंगा तुम्हारे साथ, सबके साथ, ठीक है। तो लिंक्डइन पे मैसेज कर लो या मेल कर दो, कुछ भी पूछना हो तो। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। किसी को और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। एक ये डाउट है कि हाउ इज इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन एंड ऑटोमेशन कंपनीज लाइक मेंटर ग्राफिक्स, सिनॉप्सिस एक्सेट्रा, हाउ आर दे रिलेटेड टू कंप्यूटर आर्किटेक्चर? अच्छा हाँ, सो इट इज़ नॉट कि मतलब कंप्यूटर आर्किटेक्चर का ज़्यादा यूज़ नहीं है वहाँ पे, सही बात है, बट इफ़ जो डिजिटल डिज़ाइन वाली जो टॉपिक्स हैं वो वहाँ पे बहुत यूज़ होता है, और जो तुम्हारे जो प्रोग्रामिंग स्किल्स है वो यूज़ होता है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एज सच
वहाँ पे यूज़ कम है जो ईडीए कंपनीज हैं। हाँ, यही है सीन तो मतलब। बट जो डिजिटल डिज़ाइन वाले टॉपिक्स हैं ना, मतलब जो चीज़ें हैं वो तुम्हें इंटरव्यूज में पूछते हैं बेसिकली, तो वो ज़रूरी है उसके लिए। ठीक है। अच्छा, दो चीज़ें थी ना वो, कि पहले मैंने क्या क्या एक्सप्लोर किया था और इंटर्नशिप एक्सपीरियंस। ठीक है, तो पहले क्या क्या एक्सप्लोर किया था, इसमें ये था कि फर्स्ट ईयर में मैंने लाइक कुछ खास नहीं किया था सच अलग से। फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में मैंने इंटर्नशिप किया था आईआईटी गांधीनगर में, स्टूडेंट रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम में। और वहाँ पे मैंने डीप लर्निंग कंप्यूटर विजन पे प्रोजेक्ट किया था। सो दैट वाज उस समय आई वाज लाइक कि एमएल एआई में जाना है, पाइथन प्रोग्रामिंग करनी है, सीपी नहीं करनी है। ठीक है, उस तरह से था। ठीक है, उसके बाद फिर आई रियलाइज्ड, मतलब कि फिर उसके बाद हुआ कि सेकेंड ईयर में आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इंटर्नशिप। सो उसमें मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को एनवीडिया, क्वालकॉम, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स मेंटर में इसी में निकालना है मेरे को। और तो उसके बाद फिर सेकेंड ईयर में मैंने फिर पूरा वो पढ़ा, जो मैंने तुम्हें चीज़ें बताई, डेस्ट मॉरिस मैंने पढ़ी थी, और कंप्यूटर आर्किटेक्चर के वीडियोस देखे थे। तो मैंने जो बताया है, बुक्स जो है वो मोर देन रिक्वायर्ड है, जैसे मैंने बोला, तो वो अलग से डिस्कस कर सकते हो कोई अगर पढ़ रहा हो तो, कि क्या पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद इंटर्नशिप एक्सपीरियंस जो था एनवीडिया में, दैट वाज लाइक क्वाइट गुड। मेरी टीम थी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन टीम, और आई वाज वर्किंग ऑन टेग्रा सिस्टम ऑन चिप, एसओसी, जो एनवीडिया का है। एंड उसमें आई वाज रनिंग, कि मतलब उसमें सिमुलेशंस, उसमें टेस्ट रन करते थे, देखते थे कि कैसा परफॉर्म कर रहा है, और फिर जो पैरामीटर्स आते थे उसके बेसिस पे बोलते थे कि ये ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है ठीक, तो क्या चेंजेस करें कोड में, इस तरह की चीज़ें। और मैं हार्डवेयर पे भी काम कर रहा था, जो सिमुलेशंस होते थे हार्डवेयर पे रन होते थे, तो हार्डवेयर लैब में भी मेरा काम रहता था। और फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एज अ कंपनी, एनवीडिया मतलब लाइक इज़ अ वेरी गुड कंपनी, लाइक आई वुड से। बट मतलब मेरा सीन अलग था, कि मतलब आई wanted to explore this field further। मेरे को लगा कि बीटेक में आई डोंट हैव द इनफ नॉलेज कि, सो आई वांटेड टू एक्सप्लोर दिस फर्दर। सो मैं मास्टर्स में आया। बट एज अ कंपनी, एनवीडिया बहुत अच्छा कंपनी है। वहाँ पे मतलब जो पर्क्स हैं, जो सीटीसी है, काफ़ी सही है। ठीक है, और वर्क एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है वहाँ पे। तो दैट्स अबाउट द इंटर्नशिप एक्सपीरियंस। और उसके बाद से तो आई एम लाइक कि श्योर कंप्यूटर आर्किटेक्चर में ही जाना है। AIML में बहुत भीड़ है, मैं नहीं जा पाऊँगा वह कम्पीट नहीं कर पाऊँगा मैं, तो मेरे को इधर ही लाइक आई वांट टू गो इन दिस एरिया ओनली। तो ये तब से मेरा फिर फाइनल हो गया। तो ऐसा कुछ है। तो आई होप दो क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिया। एक और आया है, अनुरूप पूछ रहा है कि भैया हाउ एंड व्हाट शुड वी स्टार्ट इन फर्स्ट ईयर। बता तो दिया कितनी बार पूछोगे। ये बनाया तो था, ये स्लाइड जो है ना, इनको दे देना, ठीक है ना, शेयर कर देना सबको। तो ये फर्स्ट ईयर स्लाइड वाला में जो लैडर भैया ने बताई थी उसी को डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ो ना अच्छे से, बता तो दिए। और तुम टाइम बच रहा है तो ये पढ़ना स्टार्ट कर दो बुक। ठीक है। Hello. हाँ, हेलो। Yes, sir. I wanted to ask, how did you prepare for this MS program at IIT Delhi? Did they ask you for some project or like you gave some GATE scores? Totally, it was based on GATE scores. हाँ, बढ़िया सवाल है। सो गेट स्कोर नहीं चाहिए होता है। इफ़ यू आर बीटेक फ्रॉम IIT, तुम्हें IITs में MS करने के लिए गेट नहीं देना पड़ता। यू कैन डायरेक्टली सिट फॉर द इंटरव्यूज़। अब इंटरव्यू में क्या मैटर करता है, तुम्हारा नॉलेज मैटर करता है,
और मेरे प्रॉफ ने तो एक्चुअली मेरे को बोला कि दिस बुक इज़ रिटन बाय माय प्रॉफ ओनली। सो उन्होंने बोला कि इसके ये चैप्टर्स पढ़ो और फिर मैं इंटरव्यू लूँगा। तो ही गेव मी टाइम टू प्रिपेयर एंड देन ही आस्क्ड मी क्वेश्चंस फ्रॉम दोज चैप्टर्स। सो एक वो चीज़ थी। दूसरा मेरा प्रोग्रामिंग टेस्ट हुआ था, तो काफ़ी बेसिक प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस पूछे थे, जो मैं बताऊंगा तो भी मतलब लोग हंसेंगे भी फिर कि मर्ज सॉर्ट पूछा था मेरे से और इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए, ठीक है, बट एकदम ऐसे मतलब ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और क्या पूछा था, एंड देन CGPA मैटर्स अगर तुम हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हो तो। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं, तो यही यही पूछा था, यही रिक्वायर्ड है। और चौथी चीज़ होती है मैथ्स पूछते हैं, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स पूछते हैं, वो तुम पढ़ लोगे। बेसिक चीज़ें हैं जो फर्स्ट ईयर में होता है शायद, वो कोर्स उसमें पढ़ाते हैं, मैथ्स वाला कोर्स। ठीक है, सो आई होप आंसर हुआ क्वेश्चन। Yes, sir. Thank you. ओके, ठीक है, और कोई क्वेश्चन? और भैया जैसे आप बताए थे कि लिनक्स यूज़ करना चालू करें, तो मतलब कैसे रहता है? जैसे मतलब उसमें क्या कि आप इंस्टॉल कर लिए, उसके बाद क्या क्या करें, मतलब कि ताकि आपको कुछ बेसिक्स क्लियर हो उसके, या कैसे उस अरे एस्पेक्ट? और उसको उसका टर्मिनल यूज़ करो ना। टर्मिनल यूज़ करके तुम जो भी मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल बेसिकली जो चीज़ यूज़ इम्पोर्टेंट है, सर्वर पे रन करना कुछ भी प्रोग्राम, दैट इज़ इम्पोर्टेंट थिंग। कि अगर तुम मान लो रिमोट एक्सेस करना है तुम्हें कोई और कंप्यूटर सर्वर, उस पर तुम्हें फाइल्स ट्रांसफ़र करनी है, उस पर तुम्हें प्रोग्राम रन करना है, कोड रन करना है, ये बहुत यूज़ होगा। तो ये चीज़ जितना जल्दी स्टार्ट कर दो उतना अच्छा है। मतलब समझ रहे हो ना, लाइक अगर मान लो तुम्हें अपने सुपर कंप्यूटर पे कुछ प्रोग्राम रन करना है तो कैसे करोगे? लिनक्स से ही होगा, विंडोज़ से होगा नहीं। विंडोज़ में मुश्किल होगा, जो भी हो तो जाएगा शायद। लिनक्स में होगा तो अब बेसिकली तुम्हें रिमोट लॉगिन करना होगा, रिमोट लॉगिन करके प्रोग्राम रन करना है। तो ये चीज़ें लाइक पूरा प्रोजेक्ट जो होता है कंपनी में ऐसे ही होता है, तो उसके लिए ज़रूरी है ये।